Yeah. Today we will discuss it about the option menu design in application. Most of the application in your mobile phone contain this kind of feature. This feature is so simple feature that is nothing but the three dots appears in the right hand side topmost corner. What happen when you click on these three dots? When you click on these three dots, it will create one menu bar, and that menu bar contain the all menus. So according to the user preferences, he or she is going to choose one of the menu, and according to that menu, he or she is going to do a particular task. If my application having several modules, then I can use the option menu to denote the all modules, and according to that, user can choose one of them. So in today's project we are going to design one menu bar first, and after designing that menu bar, we are going to assign that menu bar on options menu, and again we are going to assign some switch case statements to perform the whenever you click on a particular element, what the output will be there. So in this way we are going to do this code in Android Studio. So first of all, this is your Android Studio panel, and we have to concentrate on this area. So it is nothing but that this is the resource folder, which is most important folder. This resource folder contain a one layout folder. Your Android application is your Android application having two files. Initially it having a two files, that is a Android activity underscore main.xml and main activity.java. These two files are associated with a particular page. Okay, so for the initial page, there is a XML file, that is activity underscore main, and that page there is the file, there is a one again file associated with it, that is a Java file. Okay, we have to do, we have to design a particular one menu. Okay, and we have to assign those menu to this Java file. Okay, we have to do like this. So we have to design this menu bar first, and we have to assign that menu in a particular Java. Okay, so in this way we are going to use it. Wait. Okay, so in this way we are going to go with the particular formation. So when you click on this layout, there is in this layout there is a by default file, that is the activity underscore main.xml file. Okay, so but we have to create one menu file. So that is we have to design a one menu. So okay, so to design those menu, there is n number of menus bar. It contains n number. For this is the poly, this is the coe, it. Okay, Vidya Mandir. We have all branches of the Sanstha. So that all branches of the Sanstha having each and every branch having the own having the another information. So whenever users land on this page, according to the preferences, for he or she want to see the information on the second tab. So whenever he or she is going to click on the second tab, that click event occurs, and the second web page is going to be open. So here we are mostly focus on the particular designing of the particular menu bar. Okay, so to particular design a particular menu bar, we have to right click on this resource folder, we have to click on new button, and we have to click on this here. We have to right click, we have to new, and Android resource directory. Okay, there is a sample data directory also, there is a file also, there is a simple directory also here. There is a simple directory also, but it won't give the proper output when you use this directory. You have to choose this Android resource directly, because our menu file is the resource file. That's why
we have to choose this Android resource directory. So this is the correct one, this is not. Many of the time when you do not have the particular concept, you will go with the directly, but it will don't show you particular output. So that's why all the time whenever you are going to create a resource file, go with the Android resource directory. So just click on this, right click on this resource, go with the new Android resource directory. So here we have to give a resource directory name as a menu. By default we will give it as a menu and press is at OK. So here you will see here the menu Android resource directory is opened, but in that particular directory we have to create the XML file again, because this layout directory also having this XML file. This layout directory also having the XML file. So in the same manner we have to create one more XML file in a menu directory, and we have to assign those menu file to directly to the our Java file. Okay, so let's do. So again for this you have to click on this menu new, and you have to click on this menu resource file. Okay, this is the most important. You have to click on this menu resource file. Okay, there is a simple file also. There is a simple file also, but it won't give you a particular output when you go for this file, because this menu resource file already contain the menu oriented features. That's why you have to choose this menu resource file. Okay, so let's right click on this menu. It's a new and menu resource file. Just give a name as a menu and put it as a OK. So this will, when you go with the menu resource file, this palette will pop up. This palette contain the menu items, that is palette contain the search items, this palette contain the switch items, that palette contain the menus group. So the by default it will have the all. So okay, so this is our application, and when this is our application of the web page, and when we design this menu, 3 dots will appear over here, and whenever you click on this 3 dots, a menu bar is opened. So okay, so in this way we have to design. So just write menu item, just put drag it and drop it over here. That's it. Okay, and just give a name or particular, that is poly. This is my first name. Click over here, right click, just click. Okay, automatically it will fetch. So let's look. So here automatically 3 dots will appear, and whenever we will click on these 3 dots, the first title, that is poly, will pop up. So if I want to add more, then just drag it and drop it and change the titles, that is poly, MMIT. And there, drag it and drop it. After MMIT we will provide it as MMCOE. Okay, after this MMCOE I will pop it out Vidya Mandir. So it's Vidya. So yeah, okay, again, okay, we have again one more college, that is Pharmacy, Pharma. So we have these kind of colleges in the Pune city. So this is our main application, and according to user, if he or she wants to read the information about MMIT and MMCD, according to that he will click a particular thing, and it will the next session of the next clicking event will be occurred accordingly. Okay. So here by default, let's check that my recording is on or off. Okay, it's on. Okay, so this is the menu, and we have done right now. So this is the menu.xml here. So that is the most important. This menu folder contain menu.xml, and this folder contains in this resource folder. So whenever we will do code, we will write is at this R, that is a resource dot, after dot we will do code r dot menu. Okay, so ये menu नाम का जो folder रहेगा,
r डॉट मेन्यू डॉट, उसके बाद फिर इसे डॉट करेंगे और फिर इस मेन्यू डॉट एक्सएमएल को फाइल नेम लिखेंगे, तब जाके वो प्रॉपरली हमारा मेन्यू डॉट एक्सएमएल का फाइल रीड किया जाएगा। ओके, सो जस्ट गो विद दी, अभी हमें एक इम्पॉर्टेंट, ये तो ब्लैंक पेज ही रहेगा बिकॉज हमें कोई बटन नहीं चाहिए। सो डायरेक्टली विल गो फॉर दी मेन एक्टिविटी डॉट जावा कोड। अभी इस मेन एक्टिविटी डॉट जावा कोड में हमें ये जो एक्सएमएल फाइल है हमारा इस मेन एक्टिविटी का, तो इस मेन एक्टिविटी के लिए हमें कुछ बटन की ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं है, जस्ट हम एक प्रॉपर एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे जस्ट व्यूइंग पर्पज़ के लिए। उसके पहले हम एक रिलेटिव लेआउट चेक कर लेंगे बिकॉज हर बार वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट एक रिलेटिव लेआउट, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप इट, सॉरी 2 बार आ गया, जस्ट डिलीट वन, एक ही बार करेंगे, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप द रिलेटिव लेआउट। ओके, सेट द प्रॉपर स्क्रीन साइज and just take a text box that is a text view and just write the text that is this is a menu, ऑप्शन मेनू, सॉरी मेनू तो हमने डिज़ाइन कर लिया लेकिन ये अभी लगाएंगे ऑप्शन मेनू के लिए। सो ऑप्शन मेनू जब भी रहेगा तब यहाँ पे राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे आपको 3 डॉट्स अवेलेबल हो जाएंगे, यहाँ पे 3 डॉट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन मेनू, दैट्स इट। इस ऑप्शन मेनू को थोड़ा सा टेक्स्ट कलर देंगे और थोड़ा सा बड़ा करेंगे, दैट्स इट। सो बड़ा करने के लिए यू हैव टू गो फॉर द टेक्स्ट साइज हियर एंड टेक्स्ट साइज इज 30, ओके, एंड यू हैव टू गो फॉर द टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर के लिए आपको चलो ओके, ठीक है, दैट्स इट। So this is your main web page. You can have the all information about your organization, and after clicking on these 3 dots, the departments of all organization will happen over here. So to do a formal coding, we are going. So here हमने कुछ widgets use तो नहीं किया है, तो यहाँ पे कोई भी इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, हम हमारा एक्टिविटी मेन जो ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, ये वाला, ये तो मेरा मेन क्लास है, तो जो भी मैं लिखूँगा अब इस क्लास यहाँ पे लिखूँगा मैं, ओके, यहाँ पे लिखूँगा, चलेगा। सो द फर्स्ट द थिंग, द कोड इज स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ public boolean. So you have to create the public boolean. There is a one inbuilt class is there, that is on create. आपको है ना ये लिखना पड़ेगा बिकॉज ये पॉपअप नहीं होगा। सो ऑन का ऑन का ओ स्मॉल है, क्रिएट का सी कैपिटल है, ऑन क्रिएट ऑप्शंस एस लगाना है, ऑप्शंस एंड मेनू का एम कैपिटल, ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेन्यू, इन ब्रैकेट मेन्यू का हम एक लगाएंगे, कोई भी हम एक ये ले लेंगे, व्हाट वी कैन से द ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे ऐसे में कोलन नहीं आएगा, ठीक है, ओके, इसको हम मेथड को ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, ठीक है। अभी ये जो यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये इसका मतलब है कि वो मुझे बोलना चाहता है कि आपने मेनू के लिए कोई इंपोर्ट नहीं किया है क्लास। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, अल्ट और एंटर प्रेस करेंगे उसके ऊपर, ओके, जस्ट क्लिक ऑन दैट और अल्ट एंटर करो, ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखो आपका import एंड्रॉयड व्यू डॉट मेनू इम्पोर्ट हो जाएगा और आपका कोड अपने आप उसको रीड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। सो दिस इज़ योर कोड, ये ऑटोमेटिकली हो गया, नहीं तो फिर आपको हाथ से लिखना पड़ेगा import एंड्रॉयड डॉट व्यू डॉट मेनू, और तब जाके ये मेनू का एरर यहाँ से निकल जाएगा। अभी ये बूलियन है, because of this is a boolean, that's why it will show ही error over here, because boolean में हमेशा हमें क्या चाहिए होता है, रिटर्न वैल्यू हमेशा ट्रू या फॉल्स में होती है। तो हम यहाँ पे अभी ये जो एरर है इसको मिनिमाइज यहाँ के यहाँ ही कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे इसके पहले हम लिख देंगे रिटर्न ट्रू, ठीक है, वो एरर चला जाएगा बिकॉज इट्स अ बुलियन थिंग। तो बस मैंने क्या किया है, एक क्लास इंपोर्ट किया है, दैट इज़ अ ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेनू। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे ये जो क्लास है इसमें एक एस है, ऑप्शन मेनू नहीं है, इट्स ऑप्शंस मेनू है, और सी ओ एंड एम ये कैपिटल रहेंगे, ये याद रखना, बिकॉज ये जो ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेनू ये पॉपअप नहीं होगा, ये आपको खुद से हाथ से लिखना पड़ेगा, इसलिए वो थोड़ा याद रहना चाहिए। तो जैसे मैंने ऑप्शंस मेनू लिखा, अब आपको क्या करना है, बस इन्फ्लेटर लगाना है, जैसे कि गेट
मेन्यू इन्फ्लेटर, ये पॉपअप हो जाएगा अभी। सो गेट मेन्यू इन्फ्लेटर, ये यहाँ पे है। ओके, दिस, सो दिस गेट मेन्यू इन्फ्लेटर इज माय मेन एलिमेंट। हो, so get menu, sorry, get menu inflator। अब इसको बोलेंगे कि इन्फ्लेट करो, तो डॉट इन्फ्लेट करो, डॉट करो या फिर इन्फ्लेट करो। किसे इन्फ्लेट करो? आर यानी कि रिसोर्स फोल्डर के अंदर जो मेरा मेनू नाम का फोल्डर है, उसके अंदर जो मेरा मेन्यू नाम का फाइल है उसको इन्फ्लेट करो और उसको एक ऑब्जेक्ट बनाओ एज अ एम, जो कि ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे मैंने मौजूद किया हुआ है। दिस इज माय एम ऑब्जेक्ट ऑफ दिस ऑप्शंस मेनू। तो उसको पता होना चाहिए कि ये जो मेनू जो हम बना रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट कभी क्या किया हमने, एम को लगा दिया है, और रिटर्न क्या करो, ट्रू करो। ओके, तो ये क्लास तो हमारा अभी हो गया। इससे क्या होगा, आपका मेनू इन्फ्लेट किया जाएगा। ठीक है, दैट्स इट ओनली। अभी एक बार हम इस कोड को एक बार हम चेक करते हैं, जैसे कि हमारा सिंटैक्स करेक्ट है क्या ना। जस्ट बिल्ड एपीके करो। ओके, सो देयर आर सम एरर्स इन दिस कोड। it's error regarding some app compat error. So I have some installation problem, that's why the error will show you. So by just writing this code you can get the exactly menu locations. Okay, so today's task is only this one. You have to create a menu and you have to inflate those menu first. That's it. सो आगे के कोडिंग के लिए हम फिर से नेक्स्ट सेशंस में हम एग्जैक्टली चेक करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। ओके, सो अप टू दिस यू हैव टू क्रिएट अ वन सिंपल मेनू बार एंड you have to write a one class to inflate whatever you have designed. Okay, and that class name is on create options menu. That is the most important. और इसको लगाना है गेट मेनू इन्फ्लेटर करो और इसको करो इन्फ्लेट। जो भी आपका जो XML का फाइल रहेगा वो फाइल आपका रहेगा menu.xml का। ठीक है, उसको एक हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया है, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ज़रूरी होता है इसलिए लगा दिया है बिकॉज आगे चल के हम उस m को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। यू कैन हैव द कोड, एक सिंपल एक क्लास ही है और आप इस कोड का यूज़ करके आप आपके एप्लीकेशन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। Yeah, I have fixed those errors in this Android application, and right now we have to just click on this build and we have to check that this application is correct or not. So just before going to the build, you have to just cross verify it out. I have just introduced this only one class over here, that is a public boolean. I have used a boolean type and class name is on create options menu. Okay, and value is true. जब ये होगा तो inflate हो जाएगा. Just I have to just check it out that this is going to run or not. Just build APK and you have to locate it. Installation is completed and now you have to check that this APK is going to work. So just double click on this my application and here it will happen as a options menu. We have created, and most important, we have here the 3 dots is appeared, and whenever you click on these 3 dots you will get the menu which you have designed. ठीक है, so ये menu 1, menu 2, menu 3, menu 4 and menu 5 ये मेनू के नाम है, और इसके एसोसिएटेड एक ऑब्जेक्ट रहेगा।
हर एक मेनू के एसोसिएटेड एक ऑब्जेक्ट रहेगा, उस ऑब्जेक्ट का नाम हम देंगे यहाँ पे एज अ आइटम। आइटम जैसे कि ये वाला होगा आइटम 1, ये आइटम 2, ये आइटम 3, ये आइटम 4 एंड ये दिस इज द आइटम 5। अकॉर्डिंग टू दैट वी विल डू द कोडिंग। ठीक है, जस्ट फर्स्ट टास्क हमारा कंप्लीट हो चुका है कि मेनू यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दैट्स इट। एंड देन वी हैव टू कम बैक टू योर एंड्रॉयड कोड एंड अब क्या करना है हमें, नेक्स्ट लॉजिक क्या है कि क्लिक इवेंट बनाना है। जैसे हम कोई बटन बनाते हैं और उस बटन को हम क्लिक इवेंट करने के लिए सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाते हैं, वैसे ही ऑप्शंस के क्लिक इवेंट का अलग क्लास है, उसका नाम है फिर से पब्लिक। अगेन हम लेंगे बुलियन, पब्लिक बुलियन। अब द क्लास नेम इज ऑन, ओ छोटा है, ऑन ओ सेकंड वाला ओ बिग रहेगा, ऑन ऑप्शंस। जब भी हम यूज करेंगे ऑप्शंस लगाएंगे, ऑन ऑप्शंस, आई कैपिटल आइटम, जो भी उसका आइटम रहेगा, ऑन ऑप्शन आइटम, एस कैपिटल सिलेक्टेड। ठीक है, इन ब्रैकेट। अब आइटम के लिए काम कर रहे हैं तो यहाँ पे लगाएंगे हम एम कैपिटल मेन्यू आइटम, ये वाला मेन्यू आइटम, और इसका एक ऑब्जेक्ट हम खुद बनाएंगे, उसको हम भी बाय डिफ़ॉल्ट रहेंगे आइटम। ठीक है, और इसको हम ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे और एक रिटर्न वैल्यू लिख देंगे, रिटर्न TRUE, ट्रू। ओके, इज इट क्लियर नाउ? बस अभी क्या करना है हमें, JBB बाय यूजिंग दिस सिंपल क्या किया है, पब्लिक बुलियन, थोड़ा सा ये करता हूँ, या ये एक सिंपल सा क्लास मैंने लिखा है, बिकॉज हमें क्या करना है, हमें करना है कि ऑन ऑप्शंस, जो ऑप्शंस वहाँ पे मौजूद है उनको क्लिक इवेंट देना है। तो क्लिक करने के बाद क्या होगा, उसके लिए मेरे पास एक इनबिल्ट क्लास अवेलेबल है ऑप्शंस के लिए। जैसे हमारे पास बटन के ऊपर क्लिक इवेंट के लिए सेट ऑन क्लिक लिसनर होता है ना, वैसा ऑप्शंस के लिए लिसन करने के लिए ऑन ऑप्शंस आइटम सिलेक्टेड, यानी कि सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा, वो वाला क्लास है ये। और उसको वो क्लास किससे चलेगा, आइटम्स के अनुसार चलेगा। तो ऑब्वियस है कि हमें आइटम्स यहाँ पे डिफाइन करने पड़ेंगे। तो जैसे ही मैं मेनू के XML में जाता हूँ ना, इसका जो ये फॉर एग्जांपल ये poly है, तो उसको मुझे आइटम यहाँ पे जो ID है उसका वो लिखना पड़ेगा, दैट इज आइटम 1, सेकेंड वाला ID आइटम 2, बिकॉज मैं इनके अनुसार कोडिंग करने वाला हूँ। आइटम 3 विद्या, आइटम 4 एंड फार्मा, आइटम 5। तो अब मैं बस इसे क्या बोलूँगा, मेरे जावा को क्या बोलूँगा, जब आइटम 1 होगा तब क्या होगा, आइटम 2 अगर सिलेक्टेड होगा तो क्या होगा, आइटम 3 अगर सिलेक्टेड होगा तो क्या होगा, एंड आइटम 4 अगर सिलेक्टेड होगा तो क्या होगा। प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने क्या चेक किया था, आइटम डॉट गेट टाइटल अगर poly होगा तो क्या होगा, आइटम डॉट गेट टाइटल अगर फार्मा होगा तो क्या होगा। इट्स टोटली अप टू योर चॉइस, आप ID के अनुसार उसको सिलेक्ट करवाओ या फिर उसके ऊपर लिखा हुआ कंटेंट के अनुसार सिलेक्ट करवाओ। आई थिंक सो यू शुड गो फॉर दी IDs, बिकॉज IDs हमेशा कॉमन ही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका मेनू बार का नाम बहुत लंबा चौड़ा रहा तो आपको वो पूरा नाम यहाँ लिखना पड़ेगा कि अगर ये आया तो ही आपको ये करना है, ऐसे केसेस में डालना पड़ेगा। तो ऑब्वियस है, अब हमने आइटम्स तो बना लिए हैं, अब हमें क्या करना है, सिंपल एक स्विच स्टेटमेंट्स लेना है। हमें स्विच स्टेटमेंट में काम करना पड़ेगा कि, और स्विच के लिए हमें लिखना पड़ेगा स्विच इन ब्रैकेट, आइटम के अनुसार मैं काम करने वाला हूँ, आइटम डॉट गेट आइटम ID। तो इससे मुझे मेरा वो वाला जो मैंने आइटम के IDs लिखे थे ना वहाँ पे, वो सारे IDs मेरे आ जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। तो जैसे ही सिलेक्ट जो भी यूज़र सिलेक्ट करेगा उसका आइटम ID रिकॉर्ड किया जाएगा। और अब मुझे क्या करना है, हर एक आइटम ID के लिए केस स्टेटमेंट लिखना है। जैसे कि केस कहाँ पे, R डॉट ID डॉट, अगर आइटम मेरा 1 है तो क्या होगा, ठीक है, डबल कोलन, तो क्या होगा केस। अब यहाँ पे मुझे ये जो रिटर्न ट्रू है ना, ये केस के अंदर लिखने पड़ेंगे सब मुझे। तो अगर ये सिलेक्टेड है तो रिटर्न ट्रू करो, ठीक है।
अगर ये सिलेक्टेड है तो रिटर्न ट्रू करो, ठीक है। तो बस ये मुझे अभी 4 बार, बिकॉज ये जितने मेरे केस स्टेटमेंट है उनके लिए काम करना पड़े। सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस एंड फिफ्थ केस। तो केस एक का 1 रहेगा, दूसरे केस का 2 रहेगा, तीसरे केस का 3, चौथे केस का 4 एंड फिफ्थ केस का 5। तो इट्स अ सिंपल थिंग कि मैंने उसको बोला है कि जब भी यूज़र कोई ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा, मैंने यहाँ पे स्विच लगाया कि वो जो भी वो सिलेक्ट करेगा उसका आइटम डॉट गेट आइटम आईडी ले लो। तो वो ऑब्वियसली स्विच कंटेंट में जो भी, फॉर एग्जांपल उसने एम एम पॉली लिया तो वो आइटम 1 रिकॉर्ड हो जाएगा, और जो वो रिकॉर्ड किया हुआ जो एलिमेंट है वो मेरे केस आईडी के साथ मैच किया जाएगा, और जहाँ यहाँ पर मैं जो भी लिखूंगा इस केस में तो वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो उसको ही ट्रू कर देगा। डेट्स इट। तो बस मुझे अभी यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे आपको जो चाहिए वो लिख सकते हो, अगर आप वो क्लिक करने के बाद क्या करवाना है। फॉर एग्जांपल अब हम फिलहाल हम इनिशियल स्टेज में है, तो हम सिर्फ प्रिंटिंग करेंगे। हम सिर्फ क्या करेंगे, प्रिंटिंग करने वाले हैं। दैट्स इट। तो प्रिंटिंग के लिए हमें बस टोस्ट मैसेज चाहिए, दैट इज अ टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट इन द ब्रैकेट। 3 पैरामीटर लिखने पड़ेंगे हमारा। फर्स्ट पैरामीटर गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, सेकेंड वाला पैरामीटर आप जो भी अबाउट दी एम इंफॉर्मेशन ऑफ, अभी आपको पता होना चाहिए कि हमारे मेनू में पहला कौन है, एम एम पॉली, फिर एम एम आई टी। तो ये होगा एम एम पॉली, जो भी आप यहाँ पे लिखोगे उसके एम एम पॉली के रिलेटेड वो वहाँ पे में आ जाएगा, कॉमा, एंड थर्ड पैरामीटर इज कितना लंबा चौड़ा है आपका टेक्स्ट, दैट इज अ टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग या लेंथ शॉर्ट, क्या है शॉर्ट लिखेंगे थोड़े बार डॉट, और इसको क्या करो आप शो करो, SHOW शो, और ब्रैकेट्स विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन। बस अभी ये मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा कंट्रोल C, एंड हम ये सेकेंड वाले केस में कंट्रोल V करेंगे, और सेकेंड वाला मेरा कौन है, इट्स MMIT, उसके बाद MMCOE। तो यहाँ पे मैं बस MMIT लिखूँगा, अगेन कंट्रोल V, यहाँ पे मैं लिखूँगा MMCOE। आप यहाँ पे ना MMCOE के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो भी आप लिख सकते हो, या फिर ये लाइन में चेंजेस करने के बाद जब हम नया पेज वाला कॉन्सेप्ट सीखेंगे ना, तो यहाँ पे फिर आप MMCOE के लिए एक नया पेज डिज़ाइन करके रखो और उसका लिंक यहाँ दे दो, तो ऑटोमेटिकली जब भी यूज़र उस MMCOE को क्लिक करेगा नया MMCOE का पेज ओपन हो जाएगा उस हिसाब से। बस एंड MM विद्या, it's Vidya, and the last one is Pharma. ओके तो ये मैंने लिख दिए है, एंड नाउ आई जस्ट हैव टू क्रॉस वेरीफाइड बिल्ड करके मैं इसका APK बना लूँगा। just cross verified by using the installing that app. If APK is built it, then your syntax is good. Now you have to just check it out कि हमारा क्लिक इवेंट प्रॉपर रन हो रहा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा ऑप्शन मेनू है, यहाँ पे ऑप्शंस भी है। आई जस्ट क्लिक ऑन दैट MM poly and it will show me the elements of that MM poly. When you click on the MMIT, it will show you the MMIT. When you click on this MMCOE, तो ये MMCOE को दिखाई देगा। when ये MM विद्या, तो ये MM विद्या, और MM फार्मा के लिए MM फार्मा। तो ये स्केलेटन अभी हमारा स्केलेटन बन चुका है। और अगर आपको MM poly का वेबसाइट बना रहे हो तो जस्ट यू कैन गिव दी वेबसाइट ऑफ दैट MM poly, ठीक है, दैट्स इट। URL देने के लिए कुछ कोई अलग मेथड है इसमें, आप डायरेक्टली URLs भी दे सकते हो, वो अपने आप लोड हो जाएगा। वो भी हम देख लेंगे, जस्ट हम एक बार ऑनलाइन देख लेंगे कि एंड्रॉयड स्टूडियो में URLs कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं। सो URL लिंक इन एंड्रॉयड स्टूडियो, डायरेक्टली URL कॉपी पेस्ट करने से नहीं होगा, उसके लिए कुछ कंटेनर लेना पड़ेगा, दैट्स इट। या उसके लिए बहुत लंबा चौड़ा एक कोड है, आपको उसको पास करना पड़ेगा प्रॉपरली। सो यू आर
URL, सॉरी URL। ओके, तो आपको उस URL को पहले स्ट्रिंग में वो दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ जावा के कॉन्सेप्ट जो अवेलेबल है। बाय यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट यू कैन हैव दैट URL डायरेक्टली। ओके, वो यहाँ पे उन्होंने ऐसा किया है कि वो बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद एक बटन बनाया, उसको क्लिक करने के बाद इस URL पे ऊपर जाना चाहिए। ओके, उसने ऐसा किया हुआ है। ठीक है, हम भी एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या है ये। होता है क्या, जस्ट क्रॉस इतने तो फिर हम बाद में करेंगे ही, नो प्रॉब्लम। स्ट्रिंग URL, इंटेंट के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा क्लास इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें। जस्ट चेक इट आउट कि ये होता है या नहीं, दैट्स इट। अभी ये मैंने क्या किया, MMIT के ऊपर एक MMIT का कोई गूगल का वेबसाइट, या फिर हम हमारा MMIT का वेबसाइट दे के देखते हैं, mmit.edu.in। जस्ट वेरीफाइंग इट कि आपको आप कैसे कैसे एक्टिविटीज़ कर सकते हो। जस्ट बिल्ड इट एंड बिल्ड APK। जस्ट लोकेट इट, run it। तो MMPoly को क्लिक करने के बाद MMPoly आएगा। MMIT को क्लिक करने के बाद MMIT तो शो होगा ही, लेकिन MMIT का वेबसाइट भी ओपन हो जाएगा। ओके, सो ऐसे आप कुछ छोटे मोटे एलिमेंट्स, सॉफ्टवेयर्स या फिर प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। अब एक बार तो आपको कोड मिल गया, फिर आप द सेम हैपन्स, अभी वो सेम ये जो कोड रहेगा, फॉर एग्जांपल ये जो इतना कोड रहेगा स्ट्रिंग URL का, ये कोड आप फिर से इस आइटम्स में लिखो, उसका वेबसाइट डाल दो वहाँ पे, तो ये होगा। अब ये कोड क्या है वो देखेंगे। सबसे पहले हम हमारा स्केलेटन का कोड देखेंगे। स्केलेटन में हमने क्या किया, हमने पहले बताया कि मैं एक ऑन ऑप्शंस मेनू यूज़ कर रहा हूँ, और मैं जावा को बताया कि आपको क्या करना है, एक ऑप्शन मेनू को पॉप करना है। क्या पॉप करना है, तो ये मैंने मेनू डिज़ाइन किया हुआ है उसको पॉप करना है, या इसे इन्फ्लेट करना है। ठीक है, एक बार जावा ने उसको इन्फ्लेट कर दिया। अब नेक्स्ट टास्क है हमारा कि इन्फ्लेट करने के बाद जब यूज़र सिलेक्ट करेगा तब क्या होगा, तो उसके लिए एक कोड लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा कि ऑन ऑप्शंस आइटम सिलेक्टेड, और बाय डिफ़ॉल्ट आइटम ही यूज़ करो, मेनू आइटम और आइटम। अब हम उस आइटम का आइटम ID ले लेंगे, और जैसे ही यूज़र ने आइटम 1 को सिलेक्ट किया ये ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए, जैसे यूज़र ने आइटम 2 सिलेक्ट किया ये ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, जैसे यूज़र ने आइटम 3 को किया ये ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, और 4 किया तो ये, एंड 5th किया तो ये। ठीक है, इट्स क्वाइट सिंपल। अब जो स्ट्रिंग वाला है हमारा ये वाला पार्ट, तो इसमें है सबसे पहले कि मैंने क्या किया, जो भी हमारा जो URL है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया फर्स्ट, बिकॉज मैंने बोला है ना जावा ऑलवेज लिसन स्ट्रिंग्स, तो जो भी है उसको स्ट्रिंग URL में कन्वर्ट कर दो। उसको नाम भी हमने URL ही दिया है, URL, और ये स्ट्रिंग है। तो अभी URL में क्या है, हमारा वेबसाइट का नाम है। अब इंटेंट ये एक नया एलिमेंट है आपके लिए। इंटेंट एक नया एलिमेंट है। इंटेंट मीन्स नया ओपन करो। हम जब न्यू पेज का कोड देखेंगे ना, तब हम इंटेंट को ही यूज़ करने वाले हैं। इंटेंट इज नथिंग बट नया पेज ओपन करो। उसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाओ आई, उसको बोलो कि न्यू इंटेंट डॉट एक्शन व्यू। ठीक है, इट्स बाय डिफ़ॉल्ट। अब बस बताओ कि क्या नया करना है आपको। तो आई डॉट सेट डेटा URL है, यहाँ पे URL नहीं है, URI यूज़ करना पड़ेगा। URI डॉट पार्स URL। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इस URL को पार्स करेगा, URI में कन्वर्ट करेगा, और URI से I में स्टोर कर देगा। अब आपको क्या करना है, उस I को स्टार्ट करना है। सो दैट इज़ अ स्टार्ट एक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर I। इससे आपका वो जो वेबसाइट है वो वेबसाइट
लॉन्च हो जाएगा डायरेक्टली। हम ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम हमारे न्यू पेज में भी यूज़ करने वाले हैं। नया पेज ओपन करने के लिए हमें स्टार्ट एक्टिविटी को भी यूज़ करना है, इंटेंट को भी यूज़ करना है, ठीक है। दो चीज़ें हम नए पेज को ओपन करने के लिए यूज़ करने वाले हैं। फिलहाल इतना ही है आपके लिए। जस्ट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कोड, ठीक है। ये एक पहला स्क्रीनशॉट फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ से ये बुलियन से, तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कोड, ओके। इतना ओके उतना ही कोड है, तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कोड। या इतना कोड है आपका बुलियन से लेके ट्रू तक। टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारा ये सेशन एंड होता है।